Okay, I'm going to discuss today, the topic that was there on that we gave in the recent examination that took place on Saturday. Those who have attended the examination may be knowing this topic, but those who have not been able to attend the examination or probably because of any reason, then there is nothing to worry. I'm going to explain this in such a way that everybody will be able to understand it very easily. So this was the topic given on Saturday's examination. The tendency of human beings to copy one another is increasing in popularity. Is this a positive or a negative development? What can be done about it? I hope you could recall this lecture, this essay, everybody. आपने शायद ये essay देखा होगा. I give this on Saturday. So anybody who is not having this essay should not worry, need not worry. Absolutely nothing to worry. Yeah, I hope. Yeah. No, I have not given the score as of now. I have not given the score as of now. I'm just discussing because I got this message from, one or two students that, the topic is somewhat, they are not, the topic is easier to understand, but they're not able to understand what to do in this type of topic. Now, can anybody tell me before we go ahead with this lecture that what type of essay is this? So as you know that there are 5 types of essays. The first one is opinion essay, number 1. Number 2 is discussion essay. Third is, okay, now before I give you the list of this, can you tell me what type of essay is this? Okay, very good. This is a question based essay. Very nice, very nice. No, these are not advantages and disadvantages. तो पहले ये समझना होगा कि ये ऐसे कौन सी टाइप का है और मुझे इसके लिए पहला व्हाट एग्जैक्टली शुड बी माय स्टेप और व्हाट शुड बी माय अप्रोच इन अटेंडिंग एनी टाइप ऑफ ऐसे. मैनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू गेट अ ग्रेट स्कोर इन IELTS, उसमें एक बेसिक कारण ये भी है that they are not able to understand that what exactly has to be done in this type of essay. For example, ऐसा है, मैं पहले ये समझाना चाहूंगा, the tendency of human beings to copy one another is increasing in popularity. एक दूसरे से कॉपी करना, ये जो टेंडेंसी है ह्यूमन बींग्स की, वो अभी धीरे धीरे इंक्रीजिंग इन पॉपुलैरिटी का मतलब होता है धीरे धीरे उसका वो बढ़ रही है. पीपल आर कॉपिंग ईच अदर. इज दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट? क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट है और क्या करना चाहिए? दिस इज व्हाट एक्जेक्टली द एसे टॉपिक इज. नाउ there are 5 types of essay topics. First is opinion, second is discussion essay topic, wherein you are supposed to discuss both the sides and probably you are required to give the opinion. Number 3 is problem solution. Number 4 is advantages, disadvantages, and number 5 is question based essay or direct essay, direct question essay. Just because the question is containing positive and negative words, you don't need to think that ये advantages और disadvantages वाला ऐसे है. पहले इसको समझना पड़ेगा. Now इसको कैसे लिखा जाए? इसको हम कहेंगे direct question essay. This is basically a direct question essay. There are 2 questions being asked. Is this a positive or a negative development? Number 1. And number 2 is what can be done about it? इसके बारे में क्या करना चाहिए? Now here you only need to write 4 paragraphs. I repeat, you only need to write 4 paragraphs. There is no need to write any additional paragraph. The first is going to be introduction. Second paragraph is going to be, आपने ये देखना पड़ेगा कि आपने ये तय करना पड़ेगा कि ये क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है. If you say it's a positive development, say why. Give only one reason. There is no need to give too many reasons. I repeat, there is no need to give too many reasons. आपने ये देखना है, लिखना है कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है तो क्यों है. Is it getting there? I'm coming to the entire essay. I'm going to explain you the entire essay. Don't worry, students. ये मैंने खुद लिखा है. I will like to tell you that this essay that I'm going to show you today has been written by me. मैंने खुद ने आज लिखा है essay. और ये आपको ये जो मैंने जो लिखा है वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको. You won't get anywhere in any book, in on internet, on Google, anywhere you won't be getting this essay. I mean the topic you will get it, but the answer that I'm going to show you ये मैंने खुद ने लिखा है, इसलिए मैं चाहूंगा आप समझे इसको. Everybody. So it is not about learning new things. It's also about recapping the old things. तो यहाँ पे आपको 4 पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे. Now there is a small twist in this essay. अगर ये ऐसे द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स वाला जो ऐसे है उसमें शायद ये नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वुड हैव गॉट ओनली दिस, अगर यही ऐसे का टॉपिक होता, एज्यूमिंग दिस, तो ऐसे केस में यू नीड टू राइट 2 पैराग्राफ्स, आई मीन टोटल 4 पैराग्राफ्स. इंट्रोडक्शन, इफ यू से इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, then say why it is positive, reason number 1, why it is positive, reason number 2, and finally the conclusion. Is it clear everybody? पहले ये समझने की कोशिश कीजिए. आपको पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर जो मैंने मार्क किया है वही ऐसे का टॉपिक होता, I want everybody to understand this properly. Writing is very very difficult, students. Unless and until you understand it properly, it is otherwise going to be a horrendous task.
अगर यही क्वेश्चन होता है इज दिस अ पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट, तो आपको 4 पैराग्राफ लिखने होते। द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉजिटिव है तो उसका कारण, रीजन नंबर 1 इन सेकंड पैराग्राफ, पॉजिटिव है तो क्यों है, रीजन नंबर 2 इन थर्ड पैराग्राफ, एंड फाइनली कंक्लूजन। वैसे ही नेगेटिव होता तो वैसे ही इंट्रोडक्शन, why it is negative, reason number 1 in second paragraph, why it is negative, reason number 2 in third paragraph, and lastly but not the least is going to be conclusion। यहां पे अगर आप दो पॉजिटिव पैराग्राफ लिखते हो तो होगा क्या, अन्याय हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन के साथ, क्योंकि आपको दोनों क्वेश्चन बराबर पूछे गए हैं। So you don't need to give more justice to or more weightage to one question. This is how the entire formation of the essay should be. तो ऐसे केस में because these two questions are being asked, the format is going to be something like this. First is going to be introduction. Second question is going to give answer of the question whether it is positive or negative development. First कीजिए अगर आप positive लेते हैं तो कारण बताइए कि positive development क्यों है। तीसरा what can be done about it, इसके बारे में क्या करना चाहिए, and finally the conclusion. Technically speaking, you can also consider this to be a problem solution essay to some extent, but ऐसा जरूरी नहीं है, इसको उस नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको कह सकते हो इट्स a question based essay. Have you understood up to this point of time, everybody? Then I'll be proceeding further. Have you understood how the format is going to be? Introduction, second paragraph is going to be whether it is positive or negative development, and finally it is going to be conclusion. Everybody, it is very simple. Okay, very good. Now अब इसको कैसे लिखा जा सकता है? Now अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से, you don't need to write about both positive and negative, Dhanvi. You don't need to write about both positive and negative. सिर्फ आपको और पूछा है, you are not given, यहाँ पे end नहीं है, tell me positives and negative, what are the development which are positive and negative, ऐसा नहीं पूछा है. Somebody from you asked me a question that sir should I not write about both the aspects? No, you don't need to, because it is very specifically और शब्द का इस्तेमाल किया है तो आपको दोनों में से कोई भी एक ही चीज लेनी पड़ेगी. Is it clear everybody? Sure? Okay, आगे. Now other important thing that I would like to tell you is that ये जो tendency of human beings to copy one another, वो अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से लेंगे. For example, एक नजरिया ये हो सकता है, I don't know, see I have not checked your essays my dear students, so I would not be able to tell you what you have written, but this is how you probably might have written. Copying का मतलब हो सकता है if one is wearing a t-shirt and a jeans, you are also wearing the same, तो ये भी कॉपी हुआ. किसी ने फॉर एग्जांपल मारुति ली कार, तो आपने भी मारुति ली, ये भी कॉपी हो सकता है. दिस इज वन वे ऑफ कॉपिंग. यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा, कॉपी का डेफिनेशन नहीं किया है, सो अलग अलग लोग उसको अलग अलग नजरिए से लेंगे. दूसरा है वर्क एक्सपेक्ट, मतलब if someone is making money by doing pharmaceutical business, you can also copy the same. जैसे कि अगर किसी का बंदा है अभी ऐसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन कोरोना वायरस, मैं देख सकता हूँ काफी लोगों ने अपने बिजनेस चेंज करने का सोचा है. ऐसा देखा है कि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चला जाऊँ, बहुत पैसे, लोग बीमार तो होंगे ही होंगे, सो लेट मी ऑल्सो प्लंज इनटू फार्मास्यूटिकल बिजनेस. तो ये भी आपने कॉपी किया. एक पहला वाला जो कॉपी था, किसी ने कपड़े पहने उसका आपने कॉपी किया, किसी ने हेयर स्टाइल ऐसी डाली उसका कॉपी किया. सो कॉपी का नजरिया हर एक आदमी का अलग अलग है. इज इट क्लियर एवरीबडी? यस और नो? So you have got two ways of doing this. Yeah, you can do anything. ड्रेसिंग और फैशन भी ले सकते हो, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि कॉपी का नजरिया कोई भी हो सकता है. मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव टेकन दिस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस में अगर या फिर वर्क में आप किसी की कॉपी करते हो, यू आर नॉट ब्रिंगिंग वर्क ऑफ योर ओरिजिनल, देन इससे पॉजिटिव या नेगेटिव डेवलपमेंट क्या है. Now, can you tell me, I want this very important thing to be told, by you people to me. क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं इसमें ऐसा कौन सा वर्ड होगा जो बार बार रिपीट होगा? Have you ever thought that which of this, इसमें ऐसा कौन सा वर्ड होगा जो बार बार रिपीट होगा? आपने ऐसे लिखा होगा तो आपको पता होगा कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो बार बार. वेरी गुड, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट यू पीपल आर गिविंग मी वंडरफुल आंसर्स. वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी. ऐसा एक वर्ड है जो बार बार रिपीट होगा और वो होगा कॉपी. तो आपको ये करना है, whenever you are writing an essay my dear student, जब भी आप ऐसे लिखते हो तो ऐसे केस में ट्राई कीजिए कि जो वर्ड मुझे बार बार लिखने की नौबत आती है, हाउ कैन यू नीड टू थिंक ऑफ सिनोनिम्स ऑफ दैट वर्ड. आप उसके बारे में सोचिए कि व्हाट आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड्स. कैन यू टेल मी द सिनोनिम ऑफ वर्ड कॉपी? Yes, I want you people to give me answers. Synonyms of word copy. Very good. Imitate, duplicate, similar, replicate, imitate. Very good, very nice, extremely. Oh, okay. और ये जो ओके अब समझ गया, काफी वर्ड्स आ गए मेरे पास. अब दूसरी चीज आपको ये करना है, कौन सा वर्ड ऐसा होगा वो वापस चेक होगा, वापस रिपीट होगा. कैन यू गेस स्टूडेंट्स? आपने ऐसे लिखा होगा तो आपको पता होगा कि ऐसा कोई वर्ड है
जो बार बार रिपीट आने की कोशिश करता है। एक तो कॉपी है, वेरी गुड धरा, वेरी गुड। टेंडेंसी, जो ये जो प्रैक्टिस है, ये जो नहीं, पीपल नहीं, प्रैक्टिस जो है, दिस प्रैक्टिस ऑफ डूइंग दिस, इसको हम कहेंगे, ये भी एक वर्ड होगा जो बार बार रिपीट होगा, इजंट इट? सो ऐसे केस में आई वांट यू पीपल, जब आप ऐसे लिखो, सी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, आई वांट यू पीपल टू डू टू थिंग्स बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग इन ऐसे, नॉट ओनली इन करियर मेकर्स एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इन रियल एग्जामिनेशन। जब आप ये चीज करते हो तो पहले ये देखना है, पहले स्ट्रक्चर ढूंढिए कि मुझे क्या लिखना है अंदर। सो हाउ मेनी हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस, फॉर एग्जांपल इज दिस केस आई हैव डिसाइडेड कि फर्स्ट इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ में पॉजिटिव या नेगेटिव में लिखूंगा, और बाद में तीसरे पैराग्राफ में व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, एंड फाइनली कंक्लूजन। दूसरा काम आपका ये है, ये सोचना कि पॉजिटिव है तो कैसे है। सो यू नीड टू थिंक हाउ दिस इज पॉजिटिव और हाउ दिस इज नेगेटिव, और अगर उसके बारे में सॉल्यूशन क्या है। सो यू आर थिंकिंग अबाउट आइडिया। लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है, ये करनी है, यू नीड टू थिंक, आपकी जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पेपर जो आपका है, आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग माय स्टूडेंट्स दैट क्वेश्चन पेपर इज योर बिगेस्ट रफ पेपर। आप क्वेश्चन पेपर पे चाहो उसको गंदा कर सकते हो, सिर्फ इतना याद रखना कि आपको दिखना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। उसके अलावा आप चाहो उतना गंदा कर सकते हो। गंदे का मतलब होता है कि यू कैन जॉट द पॉइंट, योर पॉइंट्स ऑन द क्वेश्चन पेपर। तो आपको पता है कि कॉपी चीज जो है इसकी बार बार रिपीट होने वाला है। And what would happen is that if you go on repeating the word copy, it is very easy for the examiner to identify that this guy is short of words, इसके पास vocabulary की कमी है। तो जैसे कि कॉपी के लिए देखिए, मैंने भी खुद ने आज ऐसा किया। See, this is not the process that you need to do. This is the process I also need to do. I cannot, I am not, I mean, I am not I am not an exception in that. So मुझे भी ये प्रोसेस करनी पड़ेगी कि ऐसे वर्ड जो आपको दीर्घ दृष्टि से सोचना पड़ेगा कि कॉपी वर्ड है, आई विल बी एबल टू यूटिलाइज दिस वर्ड, और आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दिस वर्ड अगेन एंड अगेन इन माय एसे। तो उसके बारे में कौन से वर्ड है, तो देखिए कॉपी का मतलब है इमिटेटिंग, रेप्लिकेटिंग, डुप्लीकेटिंग। अगर नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल वर्स्ट कम सिनेरियो में अगर आपको कॉपी का एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलता, तो कॉपी का उल्टा कर लीजिए। कॉपी मतलब ओरिजिनल नहीं है, तो नॉट ओरिजिनल इज आल्सो अ वंडरफुल पैराफ्रेजिंग ऑफ वर्ड कॉपी। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो कभी कभार वर्ड नहीं मिलता तो उसका नेगेटिव बना दीजिए। अंडरस्टूड एवरीबडी? सो दैट विल आल्सो हेल्प यू आउट। सो जैसे कि अगर कॉपी है देन इट इज नॉट ओरिजिनल। फिर प्लगियराइजिंग, फॉलोइंग, किसी का ब्लाइंडली फॉलो करना, तो ये चीज आ जाती है कॉपी। ये मैंने पहले सोच के रखा हुआ है। एंड फाइनली प्रैक्टिस, क्योंकि ये सिस्टम है, ये जो सिस्टम है किसी का कॉपी करना, इसको हम प्रैक्टिस कहेंगे। तो उसके लिए भी वर्ड्स इस्तेमाल देख लीजिए। और ये वर्ड ऐसी है, ये जो सेकंड ये चीज ऐसी है, आई वुड रिकमेंड यू पीपल कि ये तो मेमोराइज कर ही लीजिए, क्योंकि ये चीज बहुत जगह पे काम लगेगी। दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू इन नंबर ऑफ एसेस, इजंट इट? जैसे कि फिनोमिनन, अकरेंस, प्रोसेस, मेथड, कस्टम, प्रोसीडियर, कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब एक चीज है, हैबिट है। तो ये वर्ड का इस्तेमाल आपको काफी एसेस में मिलेगा। सो आई वुड वांट यू पीपल टू मेमोराइज दिस। ओके, इज इट क्लियर नाउ एवरीबॉडी? सो टेंडेंसी कॉपी टॉपिक ये था, द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एक दूसरे में से कॉपी करते वो बढ़ रहा है, नंबर 1। सेकंडली, इज इट अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट, नंबर 2। और नंबर 3, उसके बारे में क्या करना चाहिए। सो नाउ आई हैव रिटन दिस एंटायर एसे in front of you. I am going to read this essay. I have written it myself, my dear students. मैंने खुद ने लिखा है, तो मैं चाहूंगा उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़े। और मैंने इसमें काफी अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। यू वोंट बी एबल टू गेट दिस वर्ड एनीवेयर एल्स, मतलब यू विल गेट द वर्ड्स बट यू विल नॉट बी एबल टू गेट द essay. The phenomenon of imitating each other has become vogue these days. Vogue का मतलब, yes everybody, see how good a vocabulary I have utilized. What is the meaning of word vogue? Yes guys, vogue का मतलब होता है फैशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वोक का मतलब होता है फैशन। सो आप अगर फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट हैव वोकैबुलरी ऑफ फैशन, ट्रेंड कह सकते हो आप। सो यू कैन से द फिनोमिनन ऑफ इमिटेटिंग ईच अदर हैज बिकम वोक दिस डेज. While this may provide temporary benefits and comfort to complete the work, I firmly believe that such blatant copying will only bring unwanted results. इससे टेम्पररी बेनिफिट्स और शायद काम करने का मुझे कंफर्ट मिल जाए, क्योंकि उससे आसानी से काम हो जाएगा अगर मैं किसी का कॉपी करता हूं। लेकिन मैं ये दृढ़ तरीके से मानता हूं कि ब्लैटेंट मतलब किसी के सीधी खुलेआम कॉपी। ब्लैटेंट का मतलब होता है खुलेआम। ब्लैटेंट कॉपिंग इज ब्लैटेंटली लाइंग इन फ्रंट ऑफ मी। ब्लैटेंटली मतलब खुलेआम, ये तो भैया ये तो खुलेआम झूठ बोल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ब्लैटेंट। सच ब्लैटेंट कॉपिंग विल ओनली ब्रिंग अनवांटेड रिजल्ट्स। तो मैंने ये पॉजिटिव बोला या नेगेटिव बोला everybody in my thesis statement? Is it positive? Am I saying positive or negative development?
ये कॉपी करने का जो तरीका है वो पॉजिटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव, इजंट इट? इट्स अ नेगेटिव डेवलपमेंट. वेरी गुड. सो आई हैव गिवन आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया. अंडरस्टूड? आई हैव गिवन द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी डन अबाउट इट. उसके बारे में क्या करना पड़ेगा? This can be reduced by providing importance to original work, which in turn will give encouragement to creativity and innovation. इसको अगर कम करना है तो ओरिजिनल वर्क को मोटिवेशन देना चाहिए, उससे क्रिएटिविटी और इनोवेशन को फॉर एग्जांपल एनकरेजमेंट मिलेगा. सो आई हैव गिवन आंसर ऑफ बोथ द क्वेश्चंस. आई हैव व्हेनेवर आई हैव बीन टेकिंग IELTS ऐसे लेक्चर और जिसमें डबल क्वेश्चन आते हैं, तो मैं हर वक्त बच्चों को ये कहता हूँ कि जब डबल क्वेश्चन ऐसे आते तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों में दोनों क्वेश्चन का जवाब होना जरूरी है. जैसे कि इन द सेकंड स्टेटमेंट आई हैव गिवन द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, इज दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट, एंड इन द थर्ड लाइन ऑफ द इंट्रोडक्शन पार्ट आई हैव गिवन द आंसर कि उसके बारे में क्या करना चाहिए. आर यू कंफर्टेबल ऑल विथ इंट्रोडक्शन पार्ट एवरीबडी? प्लीज डोंट रीड इट योरसेल्फ. मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ सारी चीज. मैं चाहूंगा सारी चीज आप समझे. अंडरस्टूड? वेरी गुड. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ. one major drawback generalized statement required, मैंने पहले कर दिया ना. see, the first statement is basically the paraphrasing of the entire topic. there is no need to write a generalized statement. see, many tutors teach you generalized statement. काफी ऐसे में generalized statement is not compulsory. there is no need to write generalized statement. that's fine, it's not compulsory. there are different ways of doing it. generalized statement is not compulsory. there is nothing to worry. अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है. यू कैन राइट अ जनरलाइज स्टेटमेंट बट इट इज नॉट कंपल्सरी, सो डोंट वरी अबाउट दैट बिट. ओके ओके ओके. नाउ वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग पीपल्स वर्क इज दैट द थॉट प्रोसेस विल डिटेरियोरेट. अगर आप किसी का ब्लाइंडली फॉलो करते हो, देखिए मुझे कॉपी शब्द का इस्तेमाल कितनी बार करना पड़ रहा है. आपने देखा जो मैंने बोल्ड वर्ड्स किए हैं इस ऐसे में, दिस बेसिकली आर द सिनोनिम्स और पैराफ्रेज वर्ड्स ऑफ वर्ड कॉपी. सो जस्ट इमेजिन कि अगर आपने कॉपी का अगर पहले से सोचा नहीं है तो आपको कॉपी बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, which will not end up in getting a great score. So पहले सोचना इसलिए जरूरी है. So one major drawback of blindly following people's work is that thought process will deteriorate. Deteriorate मतलब धीरे धीरे खराब होना. And creativity will take a back seat. अगर आप बढ़ावा देते हो किसी के काम को कॉपी करने का तो क्रिएटिविटी तो भैया बैक सीट ले लेगी, उसका तो कोई फायदा नहीं होगा. This will prevent people to think out of the box and they will slavishly replicate others' work, and great innovation is the result of innovative thinking. अगर आप इस चीज को प्रिवेंट नहीं करोगे तो लोग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है वो नहीं सोचेंगे और बिल्कुल एकदम स्लेविशली मतलब सीधा ही कॉपी कर देना, मतलब कुछ भी ओरिजिनल नहीं डालना, उसको बढ़ावा मिलेगा. जबकि ग्रेट इनोवेशन तो इनोवेटिव थिंकिंग के बाद ही होता है. एंड देन in the third line I am giving an example. Apple company, आज ही मैंने example दिया. For instance, where the pioneers of bringing touch screen phones before a decade. आपको शायद पता होगा कि सैमसंग और काफी अच्छी अच्छी कंपनियां, तो ये जो टच स्क्रीन फोन आप इस्तेमाल करते हो स्मार्टफोन, ये बेसिकली इट वाज ब्रॉट बाय एप्पल. देयर इनोवेटिव थिंकिंग नॉट ओनली चेंज द एंटायर वर्ल्ड but education became easily accessible to everyone in the world through large screen mobile phones. मैं जानता हूं आज जितने भी बच्चे उसमें शायद 10% 20% लोग ऐसे भी जो मोबाइल फोन से ये मेरा लेक्चर पढ़ रहे हैं. तो फर्ज करो अगर एप्पल कंपनी होती नहीं और इसने ये टच स्क्रीन फोन नहीं लाया होता तो शायद मुमकिन नहीं होता. आपको कंपल्सरीली लैपटॉप या फिर वो चाहिए ही होता. तो हमें ये देखना चाहिए अगर ये इनोवेटिव थिंकिंग नहीं होता then you would not be able to get the education at your doorstep. Any question in the second paragraph everybody? Have you understood? तो मैंने यहाँ पे ये किया कि अगर ऐसा करते हैं तो प्रॉब्लम होगा. And then I gave an example of Apple. Any question, any doubt students? Yes, clear हो गया? Sure, very good. Now I am going to explain the third paragraph. Third paragraph में कौन से सवाल का जवाब होगा? Third paragraph में कौन से सवाल का जवाब होगा? Students, what can be done about it? Isn't it? इसके बारे में क्या करना चाहिए? Understood? तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, उसका solution. One crucial thing, देखिए मैंने सीधा ही लिख दिया, one crucial thing that can be done to discourage such practice is to provide remuneration and incentives to original work and provide stringent punishment to those who practices such methods. एक तरीका ऐसा है कि हम क्रिएटिविटी को या कॉपिंग होने से रोके, तो ये है कि हमें रेम्यूनरेशन मतलब इनाम, इंसेंटिव्स का मतलब एक प्रकार का इनाम होता है. ओरिजिनल वर्क को रेम्यूनरेशन देना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए
और जो एक दूसरे में से कॉपी करते हैं उनके लिए स्ट्रिंगेंट पनिशमेंट, मतलब बहुत सख्त पनिशमेंट होनी चाहिए ताकि ऐसी प्रैक्टिसेस से वो दूर रहे. दिस विल मोटिवेट स्टूडेंट्स टू स्पेंड टाइम, एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज टू ब्रिंग आइडियाज ऑफ देयर ओन एंड लीड टू इनोवेशन. तो मैंने सेकंड लाइन में उसका फायदा बताया. आई हैव नॉट गिवन अ न्यू आइडिया. मैंने ये बताया इससे क्या होगा, लोग अपना कीमती समय, टाइम, एफर्ट्स और रिसोर्सेज नई चीज डेवलप करने में लगाएंगे. अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं. इन नंबर ऑफ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज देयर इज एनकरेजमेंट इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइडेड. काफी अच्छी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड क्लास, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है. हमें लिखने की जरूरत नहीं, बट एग्जांपल ऐसा दे सकते हो कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में देयर इज एन एनकरेजमेंट इन टर्म्स ऑफ जो नई चीज लेके आता है उसको स्कॉलरशिप मिलती है. हार्वर्ड, अगर फॉर एग्जांपल हार्वर्ड की फीस $50,000 है और कोई नई चीज लेके आता है तो somebody the alumni will give a scholarship of $25,000. तो उससे क्या होगा, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा. उसके साथ ये भी किया जाता है इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड टू द इंडिपेंडेंट थिंकर्स, और जो कॉपी करते हैं, एंड सस्पेंशन हैंडेड टू दोज वी रिजॉर्ट टू प्लगरिज्म. और जो किसी और के काम में से कॉपी करते हैं उनको सस्पेंशन की नोटिस दी जाती है. सो ये मैंने क्या किया, आई हैव गिवन द आंसर. इज दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट? आर यू क्लियर विद द थर्ड पैराग्राफ? एवरीबडी प्लीज गो थ्रू इट प्रॉपरली. यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये खुद लिखा है, सो मैं चाहूंगा आप उसको ठीक से समझे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर एवरीथिंग. तो मैंने इसका कारण दिया. नाउ आई एम गोइंग टू राइट द कंक्लूजन. टू कंक्लूड, despite the fact that duplicating someone's work is a very easy task and saves lots of time, one must not forget that such practice will lead to loss of originality. भले ही किसी के काम से कॉपी करना वो बहुत आसान काम है. अगर फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, आपने वो प्रोजेक्ट कॉपी कर, इसने बेचारे ने 3-4 महीने लगा दिया, आपने डायरेक्टली कॉपी कर दिया तो काम हो जाएगा आपका, लेकिन उससे क्या होगा, ओरिजिनलिटी चली जाएगी एंड सोसाइटी विल नो लॉन्गर बी एबल टू प्रोड्यूस जीनियसेस, और सोसाइटी जीनियसेस बनाना बंद कर देगी. लियोनार्डो डी विंसी हमें मिलता ही नहीं अगर ये चीज को बढ़ावा नहीं दिया जाता, बढ़ावा दिया जाता. प्यूनिटिव मतलब कि प्यूनिटी का मतलब सख्त रवैया, प्यूनिटिव का मतलब शिक्षात्मक पगले लिए जाने चाहिए. प्यूनिटिव, हाँ, प्यूनिटिव एक्शन का मतलब शिक्षात्मक पगले लेने चाहिए. अगेंस्ट सच पीपल विल डेफिनेटली एलिमिनेट सच मेथड्स. तो ये मैंने, देखिए आप देख सकते हो कंक्लूजन में भी मैंने दोनों सवालों का जवाब दिया. कैन यू सी माय डियर स्टूडेंट्स के मैंने दोनों कंक्लूजन में दोनों सवालों का जवाब दिया, और इंट्रोडक्शन में भी मैंने दोनों सवालों का जवाब दिया. तो ऐसे में ये पूरा ऐसे, दिस विल फेच मी 9 बेंड्स. अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो मुझे 9 बेंड्स मिलेंगे, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं. इज इट गेटिंग क्लियर? बिकॉज आई हैव यूटिलाइज्ड एक्सीलेंट वर्ड्स. मैंने काफी अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया. अब देखिए इसमें काफी अच्छी वोकैबुलरी भी है. मैंने टास्क अचीवमेंट भी किया. आई हैव रिटन फॉर एग्जांपल मेरे में ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी भी है, ग्रामेटिकल एक भी मिस्टेक नहीं है. एंड आई हैव प्रोड्यूस वर्क ऑफ माई ओन. आई हैव नॉट रिजॉर्टेड टू. प्यूनिटी का मतलब होता है शिक्षात्मक पगले. शिवानी, क्लियर? शिक्षात्मक गुजराती में આપણે शिक्षात्मक पगला, ये भाई एग्जैक्टली. ओके, एनी क्वेश्चंस? एग्जैक्टली. एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आई वांट यू पीपल टू टेक स्क्रीनशॉट. स्ट्रिक्ट एक्शन, वेरी गुड. सो ये जो ऐसे है उसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड दिस विल हेल्प यू आउट. तो आपको पता चला कैसे लिखना है ऐसे. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स इन दैट? ओके, so I'm just yeah, if you have taken the screenshot, strict मतलब बहुत, हाँ, if you have taken the screenshot, I'll resort to the next slide. Yeah, we'll do that tomorrow. Any questions, any doubts? Shall I resort to a next slide now, everybody? Okay, great. Thank you, students. Okay, so what I shall do is that on every Saturday, जब Saturday होगा और जब आपने ऐसे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आई विल बी गिविंग यू ऐसे. या डू यू वांट मी टू टेक दिस टाइप ऑफ थिंग्स ऑन प्लगरिज्म? का मतलब होता है प्लगरिज्म का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी और का काम कॉपी करना और उसको रिसोर्स नहीं देना. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी का काम कॉपी किया है और उसको खुद का नहीं है, उसको हम बोलेंगे प्लगरिज्म. क्लियर? कॉपिंग डाउन समवन एल्सेस थिंग. सो व्हाट आई शैल डू इज दैट ऑन मंडे probably I'll be taking this essay जो मैंने एग्जाम में दिया है उसका मैं छोटा सा ब्रीफ आउट ले लूंगा. तो आपको मैं अपने हाथों से लिखूंगा. So you'll get to know how the essay can be written. Clear? Okay. Now let us move on to the next slide.
Okay, students, are you all ready? Yeah, I'll take it next time. Yeah, students, are you ready for the reading session? मैं चाहूंगा नोटबुक और पेंसिल साथ में रखना है और इसमें बड़ा मजा आएगा. आई एम गोइंग टू गिव यू रीडिंग और पूरा पैराग्राफ है and you are going to do this entire passage. Understood? I want you people to do this entire passage. A passage is this. I want you people to just go through this passage. चलिए पैसेज को देख लीजिए. प्लीज गो एंड आई देखिए मैं चाहूंगा एक भी बच्चा जाए नहीं. इट यू लेट मी टेल यू दैट मुझे ये रिपोर्ट मिल जाता है कि कौन बच्चा किसने लेफ्ट किया है मीटिंग में से. क्योंकि ये रीडिंग है, मैं चला जाऊंगा ऐसा नहीं चलेगा. you'll have to take my permission, sir. I want to leave only, then I'll be giving you permission to leave. Everybody, you would not be allowed to join my class next time, students. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ. आप चाहे प्लीज do this properly. Clear? कोई भी बच्चा जाना नहीं चाहिए. Now let me tell, yeah, can you tell me, students? I am going to give you 3 minutes to just go through this paragraph, and we'll be then doing questions based on this. 3 minutes starts, time starts now. चलिए सिर्फ रीड कर लीजिए. I want you people to read it. Anisha, try to do it. Yeah. Just take a general idea. You may not be required to read everything. Please take a general idea. Burial means जहाँ पे दफन किया जाता है उसको burial कहते हैं. Okay, time up, my dear students. Have you read? Have you got the general idea of the entire passage? Everybody, have you read, students? Exactly. Okay. Now see, आपने क्या करना है? All of you, who is doing this passage or reading for the very first time. Now you don't need to remember or understand everything. काफी ऐसे words होंगे जो शायद आपको पता नहीं हो चले होंगे. You don't need to get nervous for that.
यू इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट आप IELTS 10 साल करोगे तो भी काफी वर्ड्स ऐसे होंगे जहां पे आपको पता नहीं चलेगा. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंटायर फॉर्मेट ऑफ द एसे. रीडिंग में आप देख सकते हो कि द फर्स्ट पैराग्राफ, in the first paragraph they have talked about ancient Egypt. ये कैसे हुआ, कहाँ पे बना, उसके बारे में है. Then they have talked about for example लोग वहाँ के कैसे हैं, काफी मेहनती है. यहाँ पे लिखा Egyptians were industrious, highly civilized and deeply religious people. बहुत मेहनती लोग थे, civilized लोग थे, काफी deeply religious लोग थे. And then they have talked about कि for example the burial of the dead, कफन मतलब दफन जो कहते हैं उसको कफन क्या बोलते हैं, कफन नहीं कहते उसको, tomb बोलते हैं, burial of the dead, उसके बारे में जिक्र है. एंड देन पिरामिड कैसा है उसके बारे में जिक्र है फॉर एग्जांपल. या ओके, नॉट एन इश्यू. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. 80 एंशिएंट पिरामिड्स है, उसके बारे में है. एंड दे हैव टॉक्ड अबाउट, ये कंस्ट्रक्शन के बारे में है. सो दिस पैराग्राफ इज अबाउट कंस्ट्रक्शन, के कंस्ट्रक्शन कैसा है, कितनी साइज है, उसके बारे में है. देन ये मटेरियल के बारे में है. इन द ऑन द सेकंड कॉलम, मतलब सेकंड पेज, यू कैन सी दैट दिस एंटायर पैराग्राफ इज अबाउट मटेरियल. तो आपको ये देखना जरूरी है. यू माइट नॉट बी एबल टू रीड एवरीथिंग, बट एटलीस्ट गेट द जनरल आइडिया कि कहाँ पे क्या है. देन दिस इज अबाउट पीपल, लोग वहाँ पे कैसे होते हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, वो लोग नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा मानते हैं, उसके बारे में है. और उन लास्ट टू पैराग्राफ्स इज अबाउट आर्ट. आर्ट है, उनकी आर्ट में बहुत पैशन है, और उनकी आर्ट जो है वो बहुत इट इज वेल नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड. Any questions, any doubts on that? इतना जनरल आइडिया आ जाता है, then also it basically helps you out in doing entire reading questions. Any questions, any doubts, students? Yes, have you read, have you got the general idea, got or not? Yes or no? Very good everybody. If you want some time I can give you, but ये देखिए एग्जाम में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा. So I'll be cheating you if I'm giving you time. Understood? Yeah, कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना याद रख. Now the questions will suit up, and I want you people to do questions number 1, 2, 3. Please do questions number 1, 2 and 3, and please don't send me the answers. I'm going to give you 5 minutes. I'm going to give you 5 minutes for this. Get started. 4 minutes दूंगा मैं. चलिए, start doing it. Write your answers in your notebook in capitals.
Yeah, 1 minute more. Those who have done it, please check your answers. You can recheck your answers in case if you're done. I want everybody to attempt it. Please don't worry if you're not getting the right answer. Okay, students, time up. Have you done? Everybody? Yes, time up, time up. Yes. Okay, so let me explain this to you, everybody. Okay, let me see. Let me explain this to you. Now, first and the foremost thing, आपको कैसे इसको अटैक करना है या कैसे उसको अटैक करना है. You need to understand that these are the first 3 questions of your entire passage. तो जाहिर है कि first 3 questions है तो answer should come down in first, second और third paragraph. Let me reiterate, because these are first 3 questions of your entire passage, the answer should come down in 1, 2 or maximum 3 paragraphs. उससे ज़्यादा नहीं जाएगा ये. Number 1. Okay. Now the other important thing is that ये जो type of question है, this type of question is a sentence completion, or so it is very very important that the answer that you put should be grammatically fitting. ये grammatically fit होना ज़रूरी है. Question ये things, I mean condition number 2 और condition number 3 ये है कि your answer should not be more than 3 words. Now how I'm going to approach this? Approach हम ऐसे करेंगे. आपके लिए कीवर्ड कौन सा है? Can you tell me what is the keyword going to be in first paragraph? Everybody, guys, which keyword will help you out in getting the answer? Can you tell me, guys? कौन सा कीवर्ड आपको आंसर लेने में मजा कर या सिक्योरिटी एंड पीस. द कीवर्ड दैट विल हेल्प यू आउट इन गेटिंग द आंसर इज सिक्योरिटी एंड पीस. ये आपको कीवर्ड जो होगा दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ आई एम जस्ट या स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी माय कर्सर? आप कर्सर देख सकते हो मेरा? कैन यू सी माय कर्सर, एवरीबॉडी? Yeah, that's great. Then I don't need to. Yeah. So security and peace जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए. I can see this, it is given over here. Yeah, please mention over here. Yeah, यहाँ पे देखिए. Sustained by the river Nile and protected by vast deserts, the Egyptians lived in comparative security, prosperity and peace for thousands of years. काफी टाइम से वो लोग security और peace में रहते थे. When such conditions exist, ये जो है ये ऐसी कंडीशन, कैसी कंडीशन जिसमें सिक्योरिटी है, पीस है और फॉर एग्जांपल प्रॉस्पेरिटी है. तो यहां पे लिखा है सिक्योरिटी एंड पीस आर टू, दैट मींस द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी कंडीशंस. इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबॉडी? यहां पे लिखा है एक ऐसी कंडीशंस जहां पे एग्जिस्ट करती है तो सिविलाइजेशन और अपनी आर्ट्स खुद ही डेवलप होता है. सो आंसर, ये कंडीशन का उल्लेख यहां पे किया है. सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज गोइंग टू बी कंडीशंस. और यहाँ पे ये याद रखना जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल दैट बिकॉज 2 दिया है, 2 दिया है, गलती से कभी अगर आपने कंडीशन मतलब सिंगल लिख दिया, द आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग आंसर. सो यू नीड टू राइट कंडीशंस, CUNDITIONS. ओके. नंबर 2, ancient Egyptians worked as both. Both मतलब फॉर एग्जाम्पल whenever you are going for both, it is very very important. नहीं, कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं होगा, सिर्फ 2 कंडीशन से आएगा, ओनली कंडीशंस. ओके. एंशिएंट इजिप्शियंस वर्कड एज बोथ. नाउ लेट मी टेल यू, इट इज गिवन इन सेकंड पैराग्राफ लास्ट लाइन. Egypt prospered as a nation of skillful craftsmen and artists. Skillful craftsmen and artists. Now over here it is important for you to understand कि यहाँ पे भी आपको कौन सा वर्ड, क्योंकि it is very very clearly mentioned that you should not be writing more than 3 words. तो अगर आपने स्किलफुल लिखा, द आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग आंसर, बिकॉज देन इट विल बी स्किलफुल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिस्ट, मतलब 4 वर्ड्स हो जाएंगे. तो यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको. यू कैन नॉट राइट स्किलफुल. अगर यहाँ पे एंड दिया होता, सी यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा. एंशिएंट इजिप्शियंस वर्कड एज बोथ, फिर ये ब्लैंक एंड और बाद में ब्लैंक आता, तो आप लिखते स्किलफुल क्राफ्ट्समैन और बाद में लिखते आर्टिस्ट, तो चलता. But because that is not the case over here, you need to understand that if you write skillful, it will be 4 words.
So answer is going to be craftsman and artist. Make sure you don't commit mistakes in craftsman. Craftsman में MEN है, MAN नहीं होगा. Okay, last, third, ordinary Egyptians expected to receive dash for their hard work. तो यहाँ पे लिखा है, I am reading the third paragraph. सी इतना चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि सारे आंसर्स जो है वो सीक्वेंस में आएंगे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ये सेकंड पैराग्राफ का आंसर यहाँ पे कहीं पे है, देन द थर्ड आंसर शुड कम डाउन probably after this. मतलब ये इसके बाद ही आएगा. The Egyptians were an industrious, highly civilized and deeply religious people and obediently accepted the supreme authority of their pharaohs. Pharaohs मतलब उनके राजा. The people were content मतलब संतुष्ट थे, to serve and work for the state. संतुष्ट थे अपने देश के लिए काम करना. किसके लिए? तो स्टेट उनको क्या प्रदान करता था? इन रिटर्न मतलब उनको देता था अ सिक्योर लाइवलीहुड, मतलब उनको रोजी देता था. तो यहाँ पे आएगा ऑर्डिनरी इजिप्शियंस एक्सपेक्टेड टू रिसीव. रिसीव का मतलब यहाँ पे रिटर्न है उसका सिनोनिम. तो आंसर होगा अ सिक्योर लाइवलीहुड. सो आंसर ऑफ थर्ड इज गोइंग टू बी अ सिक्योर लाइवलीहुड. Now, if you written only secure livelihood, the answer is going to be marked as a wrong answer. Let me tell you, students. अगर आपने सिर्फ सिक्योर लिखा है सिक्योर लाइवलीहुड, the answer is going to be marked as a wrong answer. Answer is going to be a secure livelihood. It is given over here. Any questions, any doubts, students? ये रहा, ये सेकंड, ये थर्ड का क्वेश्चन, ये सेकंड का क्वेश्चन यहाँ पे है, और यहाँ पे होगा फर्स्ट का क्वेश्चन. ओके, एनी क्वेश्चंस? देन आई विल बी गोइंग फर्दर. एवरीबॉडी, यस और नो? एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? प्लीज गो थ्रू इट. देन आई बी, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. ओके, वेरी गुड. थोड़ा सा जल्दी कीजिए तो ज्यादा हम अटेम्प्ट कर पाएंगे. विल बी एबल टू अटेम्प्ट मोर. क्लियर? ओके. क्वेश्चन नंबर 2, लेबल अ डायग्राम. ओके, प्लीज डू दिस. लेबल अ डायग्राम. अ सिक्योर लाइवलीहुड, वो ग्रामेटिकली ठीक नहीं है जारुल. यू कैन नॉट राइट सिक्योर लाइवलीहुड. इट इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट. और वैसे भी 3 वर्ड्स है, तो व्हाई शुड यू ओमिट आर्टिकल्स? क्लियर? यू आर अलाउड टू राइट 3 वर्ड्स. ओके. नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन हियर. मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि व्हाट इज दिस नोन एज. इसको हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज लेबलिंग अ डायग्राम. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? या पिरामिड तो है ही ना, बट दिस इज लेबल. ए टाइप ऑफ क्वेश्चन इज लेबलिंग अ डायग्राम. अंडरस्टूड? तो एक काम करना है आपको. कैसे पता चलेगा वेयर यू विल बी गेटिंग द आंसर? आप कैसे कैसे करेंगे? नो वरीज ना. कैसे पता चलेगा कि आंसर कहाँ पे ढूंढना है? तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि आपका जो पहले का जो 3 क्वेश्चंस थे उसका आंसर आपका यहाँ पे खत्म हुआ. ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन हियर. The first 3 questions you got the final answer, that is the third answer somewhere over here. ये आपका थर्ड आंसर था. इसका मतलब कि आंसर्स मोस्ट प्रॉब्ली इसके बाद आने वाले हैं. और उसके साथ आप ये भी कर सकते हो, यू कैन टेक दिस. देखिए ये जो आपका है वो कीवर्ड है. दिस इज योर कीवर्ड, किंग्स चेंबर. ये आपका कीवर्ड है, ये आपका कीवर्ड है. अब इसको मद्देनजर रखते हुए आई वांट यू टू पीपल टू गेट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. 4 आपको ढूंढना है. क्या है 4? मतलब ये है, देखिए ये. फिर ये 5 है, ये आपको ढूंढना है. फिर ये 6 है, ये 6 है आपका. और ये 7 है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू अगेन 4 मिनट्स टू डू इट. चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 4 मिनट्स. गेट मी आंसर ऑफ 4, 5, 6, 7. Let me tell you, in diagram, the answer may or may not come in sequential order. I repeat, in diagram, the answers are not always expected to come in sequential order.
Yeah, is it done, everybody? इसमें ही है राज, the answer is going to be from this only, don't worry. आंसर इसी में है. There is no need to switch the page. The answer is going to be only from this, don't worry. Okay. चलिए students, time is up. Yeah, time is up. Do you want me to explain now? Let us go ahead now. सारे बच्चे अब सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखेंगे. I want everybody to concentrate. यहाँ पे सबसे बड़ा कीवर्ड कौन सा है? You need to locate this keyword. The keyword is over here is King's Chamber. सबसे important क्योंकि ये सेंटर में है. So you can see that King's Chamber location is somewhere over here. Yes, everybody is fine with this part. So King's Chamber is somewhere over here. यहाँ पे King's Chamber है. Okay. Now let us see. I am reading this over here. At the center of the pyramid is the King's Chamber, and leading down from there is a long narrow area known as the Grand Gallery. वहां से नीचे लीडिंग डाउन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ जो आपका है इज बेसिकली द ग्रैंड गैलरी. You can also write Grand Gallery or you can also write the Grand Gallery. Any doubts on that fourth one, everybody? Have you understood why it is fourth is the Grand Gallery? I want everybody to understand. Please say yes or no, students. हाँ, प्लीज से यस और नो. इफ यू नॉट अंडरस्टूड इट इज फाइन, नॉट एन इश्यू. ठीक है, क्लियर हो गया ये? ओके. आप जितना जल्दी करेंगे, जितना हेल्प करेंगे मुझे, यू नो, आई विल बी एबल टू गो फास्टर एवरीबॉडी. या ठीक है, चलिए, दैट्स ग्रेट. Now I am over here. The pyramid covers, yeah, I am here, Grand Gallery. The pyramid covers 13 acres and contains 2,300,000 blocks of limestone. ये हमें कोई काम का नहीं है. Each weighing an average of 1.5 tons. Its pyramidal form as a perfectly square base with a side 756 feet, जो यहाँ पे दिया हुआ है, and a height of 481 feet. मतलब fifth का जो आंसर है is going to be 481 feet. Understood? So answer of fifth is going to be 481 feet. Okay, then okay, any questions on that? Okay, then उसके बाद आगे बढ़ेंगे. Situated directly below the King's Chamber is the Queen's Chamber. Exactly King's Chamber के नीचे जो छठा है, वो उसके नीचे exactly जो है उसको हम कहेंगे Queen's Chamber. So answer of sixth is going to be Queen's Chamber. Any doubts on that? सिक्स का आंसर होगा Queen's Chamber. ये रहा, सिक्स खत्म हो गया. अब सेवंथ ऊपर है, तो देखते हैं क्या करते हैं. Situated directly below the King's Chamber is the Queen's Chamber, and there are two air channels leading upwards from the center of the pyramid to the outside. यहां से ऊपर जाता है, ऊपर देखिए, ये पता चल जाना चाहिए कि ऊपर जाता है, उसको हम कहेंगे there are two air channels. तो सेवेंथ का आंसर होगा is going to be two air channels, या तो फिर आप air channels लिखोगे तो भी चलेगा. Any questions, any doubts? So I repeat, the answer of fourth is the Grand Gallery. Fifth is 481 feet. Sixth is Queen's Chamber. And seventh is air channels. Yeah, two air channels. Any doubts on that? Everybody? Questions, any doubts or questions? Are you enjoying? Very good. Are you all enjoying? Yes or no? You should enjoy. Whatever you do, you should enjoy, isn't it?
एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, यू पीपल आर ऑल एंजॉइंग, थैंक यू। लेकिन अब आपका एंजॉयमेंट जो है वो ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है, क्योंकि अब आने वाला है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। इज इट गेटिंग क्लियर? सो दिस इज अ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। चलिए, तो ये देखना है 8, 9, 10, 11 और 12। अब मैंने आपके लिए थोड़ा सा काम आसान कर दिया है। जस्ट लेट मी टेल यू दैट आपने देखा होगा, जस्ट एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन यू, कि आपने देखा होगा आगे वाली स्लाइड में, इन द प्रीवियस स्लाइड इट वाज समवेयर ओवर हियर, हमने यहाँ पे किया था। देखिए, चैम्बर एंड देयर आर 2 एड चैनल्स लीडिंग अपवर्ड्स, आई एम रीडिंग द लास्ट 2 लाइन। अब वही चीज आ जाती है यहाँ पे, देखिए ये ऊपर है। सो दिस इज वेयर द, ये दूसरा कॉलम है, मतलब दिस इज द सेकंड पेज। अब यहाँ पे देखना है 8 to 12 है। सो हमें कैसे पता चलेगा कि सर आंसर पहले पेज से स्टार्ट होता है या सेकंड पेज से? तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड्स। ये लाइमस्टोन स्लैब्स दिख रहा है आपको? दिस इज अ कीवर्ड बिकॉज लाइमस्टोन स्लैब्स इज समथिंग, इट्स अ यूनिक कीवर्ड। तो मैं देख सकता हूँ, मैंने देखा है कि लाइमस्टोन स्लैब्स जो है वो यहाँ पे है। देखिए, इट इज गिवन ओवर हियर, एवरीबडी कैन यू सी दिस? तो इसका मतलब ये हुआ कि 8, 9, 10, 11 एंड 12 आर ऑल गोइंग टू कम डाउन आफ्टर दिस limestone slab word. Understood everybody? Have you understood this? तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि लाइमस्टोन स्लैब्स यहाँ पे है, मेरा कर्सर जहाँ पे दिख रहा है आपको। The answers are of 8, 9, 10, 11, 12 that is true, false or not given are going to come after this. Any questions, any doubts in this? मैं आपको टाइम दे रहा हूँ आपको. I'm going to give you time to do this. Questions clear, everybody? Sure? Okay. Now I'm going to give you exactly 5 minutes to do this. Take 5 minutes. Please take 5 minutes. Your time starts now. You need to write true, false or not given. चलिए.
1 minute more. I want everybody to stay. Last question इससे भी बहुत अच्छा है. Done, everybody? Yeah, वैसे भी time is up. Yeah, please. Yeah, please attempt it. It is very important कि आप attempt करें. There is no need to worry about getting wrong or right answer. Now I'm going to explain you very very wonderfully. आपको कोई tension नहीं होगी. Okay. Now first and the foremost thing लिखा है. I am reading the question. हर वक्त question को पहले read करना है. The surface of the Great Pyramids is covered in polished limestone slabs. And I could see काफी लोगों ने मुझे privately answers दिए हैं. और शायद फर्स्ट ये 2 लाइन में लिखा है ओरिजिनली द एक्सटीरियर वाज कवर्ड इन हाईली polished limestone slabs, isn't it? So what is the answer of this? Can you guys tell me? Yes. अब यहाँ पे सबसे जो दिक्कतें आती है, जो सबसे जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे टेंस मतलब पास्ट का है. यहाँ पे 8th में जो दिया है द सरफेस ऑफ द ग्रेट पिरामिड्स इज कवर्ड, मतलब इज कवर्ड का मतलब अभी वो कवर्ड है लाइमस्टोन स्लैब्स में. So what they are talking is about the present, isn't it? They have talked about the present part. But over here it is written originally the exterior was covered in highly polished lime. पहले वो हुआ करता था, इसका मतलब वो अभी नहीं है. पहले वो हुआ करता था, वो अभी नहीं है. और यहाँ पे दिया है कि अभी वो ऐसा लाइमस्टोन स्लैब से बना हुआ है, सरफेस कवर किया है. So that means the answer of 8 is going to be false. Is it clear everybody? देखिए यहाँ पे ये समझने वाली बात है. यहाँ पे समझने वाली बात है. काफी लोगों ने, मैंने देख रहा हूँ कि काफी लोगों ने आंसर दे हैव गिवन इट टू बी ट्रू. तो देखिए ऐसा नहीं कि आप 50-50 रीडिंग करो, लेकिन समझो आप, यू नीड टू अंडरस्टैंड, एनालाइज कीजिए कि देखिए आपको कैसे बेवकूफ बनाया है. ओरिजिनली द एक्सटीरियर वाज कवर्ड और यहाँ पे है इज पॉलिश्ड. इसका मतलब द आंसर ऑफ 8 इज गोइंग टू बी फॉल्स. 9th, किंग खाफरा डाइड बिफोर किंग चियोप्स. इन द सेकंड पैराग्राफ ऑफ दिस लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इट इज वेरी वेरी वेल मेंशन्ड ओवर हियर. देखिए यहाँ पे देखिए किंग खाफरा और चियोप्स का उल्लेख जो है सिर्फ लास्ट 3 लाइन में दिया है. आई एम रीडिंग दैट द फेस इज पॉसिबली अ पोर्ट्रेट ऑफ किंग खाफरा, the son of Cheops, who was buried in the second largest pyramid. The Sphinx is one of the biggest statues ever made. उसके अलावा कहीं पे भी उन लोगों का जिक्र नहीं किया गया है. There is no mention about these 2 people anywhere in the entire passage. और यहाँ पे कहीं हमें ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई पिताजी है और उसका सन है, तो ऐसा आपको मानने की जरूरत नहीं है कि सर वो पिताजी है तो उसका सन है तो जाहिर है पिताजी पहले मरे हुए होंगे. आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में करने की अनुमति नहीं दी जाती. भगवान ने आपको कोई अनुमति नहीं दी कि आप अब ये सोचो कि पिताजी है तो पहले मरेंगे, ऐसा नहीं है. उनके बारे में कब पैदा हुआ कब मरा उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है. आंसर ऑफ 9th इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. अंडरस्टूड एवरीबडी? श्योर? आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू वेरी स्लोली. मैं बिल्कुल स्लोली आपको समझा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें पता चले. इज इट क्लियर? ओके. Then let us go for the 10th one. Egyptian carvings were often based on things found in nature. Egyptian के carving थे, वो नेचर में जो चीज पाई जाती है, नेचर में जो चीज पाई जाती है उसके ऊपर बेसिस है. तो आप देख सकते हो, इट इज गिवन इन द 3rd पैराग्राफ. द इजिप्शियन पीपल शोड रेवरेंस. रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट. रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट towards natural objects such as the lotus flower, the scarab beetle, the falcon, the lion, the sun, and the river Nile. All these subjects and many more were used symbolically and conventionally as motifs in low relief carving and painting. तो इसका मतलब ये हुआ
कि यही जो है, ये लोग जो है उनके जो सब्जेक्ट्स थे ये उन पे डिपेंडेंट होते थे, नेचर्स पे डिपेंडेंट होते थे। और वही चीज यहाँ पे दी गई है, मेंशन की गई कि सब्जेक्ट्स जो है, और ऑल द सब्जेक्ट्स एंड वेरी सिंबॉलिकली एंड कन्वेंशनली एज मोटिव्स इन लो रिलीफ कार्विंग एंड पेंटिंग, मतलब उनके कार्विंग और उनके पेंटिंग में ये नेचुरल सब्जेक्ट्स का जिक्र होता था, उनका ध्यान दिया जाता था। दैट मीन्स द आंसर ऑफ 10th इज गोइंग टू बी ट्रू। एनी डाउट्स ऑन दैट? ओके, 10 इज गोइंग टू बी ट्रू। 11th का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट, आई एम श्योर 11th का आंसर काफी लोगों को नहीं मिला होगा। 11th में लिखा है important characters in Egyptian carvings were bigger than less important characters। उनके जो carvings थे उसमें जो बहुत important character जो थे वो बड़े दिखते थे कार्विंग्स में इन कंपैरिजन टू छोटे कैरेक्टर्स। जैसे कि अगर कार्विंग है जिसमें राजा और प्रजा दिखाया जाता है तो राजा का जो कार्विंग होता है वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू प्रजा का कार्विंग। इज इट गेटिंग क्लियर? अब आप देखेंगे सर ये कहाँ पे लिखा है, इट इज रिटन ओवर हियर। आई वांट, काफी लोगों का आंसर इसमें गलत है, इट इज रिटन ओवर हियर। अब मुझे देख के बताइए इसका आंसर क्या है, चलिए टेल मी वेयर इज, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। चलिए चलिए शांति से देखिए, यू कैन चेंज योर आंसर्स नाउ। हाँ पता चला, तो यहाँ पे लिखा है इट वाज एसेंशियली टू डायमेंशनल एंड रिलेटिव साइज इंडिकेटेड द स्टेटस ऑफ ए पर्सन। आपके जो कार्विंग थे उसमें जो रिलेटिव साइज है वो स्टेटस दिखाता है। सो द फेराओ, फेराओ का मतलब किंग, वाज द लार्जेस्ट फिगर इन द कंपोजिशन, तो वो सबसे बड़ा था। सो आंसर ऑफ 11th इज गोइंग टू बी ट्रू। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी? यस और नो? अब पता चला, गलत हुआ उसका टेंशन नहीं है, लेकिन पता चला आपको क्यों गलत हुआ। हैव यू अंडरस्टूड नाउ? ओके, एंड लास्ट, ओके, Egyptian art was greatly influenced by the art of neighboring cultures। पहले अंदर देखते हो, ट्रू फॉल्स नॉन गिवन देखते हो, उसके पहले सोचो इसका मतलब क्या है। Egyptian art was greatly influenced by the art of neighboring cultures। इसका मतलब क्या है कि इजिप्शियन आर्ट थी वो बाजू के कल्चर, नेबरिंग कल्चर से काफी प्रभावित थी। इन्फ्लुएंस का मतलब इजिप्शियन आर्ट बाकी के कल्चर से काफी प्रभावित थी। मैं वापस दोहराना चाहूंगा, उसमें ऐसा लिखा है कि इजिप्शियन आर्ट जो थी वो बाकी के जो जो नेबरिंग कल्चर्स है उनसे प्रभावित थी। जबकि इफ यू रीड दिस लाइन, अगर इसकी बात करें फॉर एग्जांपल, इफ आई रीड दिस, ये रहा देखिए, ये पढ़िए आप, यहाँ पे देखिए, हाँ, it is obvious that art among these people reached a very high level and the strong influence of Egyptian art can be seen in the work of nearby civilization। इसमें उल्टा दिया है, इसमें ऐसा दिया है कि इजिप्शियन जो आर्ट थी उसका काफी प्रभाव आजू बाजू की सिविलाइजेशन पे था, और यहाँ पे गलत दिया हुआ है। दैट मीन्स द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? अब पता चला सबको? आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, और इससे ज्यादा कोई अच्छी तरह से आपको समझा नहीं पाएगा, वो मेरी गारंटी है। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस? ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड दिस। या अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दिस इज 13 जो है, when a multiple choice question comes at the end of the entire passage, I repeat, when a multiple choice question comes at, या मैं सारे आंसर्स आपको बाद में दिखाऊंगा, डोंट वरी, आई विल बी गिविंग यू ऑल द आंसर्स एट द एंड, सो यू कैन कॉपी डाउन दैट थिंग, डोंट वरी। ओके, नाउ आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड that अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इट कम्स एट द एंड ऑफ द एंटायर पैसेज, then it no remains a multiple choice question, इसको हम कहेंगे global multiple choice question। is it getting clear? yeah you want me to explain 12th one? 12th काफी लोग बोल रहे 12th explain करे। हाँ, 12th में ऐसा दिया है, I'll repeat, 12th में क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि इजिप्शियन आर्ट था वो बाजू की नियर बाई सिविलाइजेशन से काफी प्रभावित था, मतलब बाकी के सिविलाइजेशन जो करते थे वो इजिप्शियंस करते थे। लेकिन अगर आप पैराग्राफ में देखेंगे तो उल्टा दिया है, उसमें ऐसा दिया है कि बाजू के लोग जो है वो इजिप्शियन की चीजें कॉपी करते थे, मतलब उनसे प्रभावित थे। क्वेश्चन में दिया है इजिप्शियन बाकी के लोगों की कॉपी करते थे, जबकि पैराग्राफ में दिया है कि बाकी के लोग इजिप्शियन से कॉपी करते थे, प्रभावित थे। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन ऑपोजिट दी है, दैट मीन्स द आंसर इज गोइंग टू बी फॉल्स। अंडरस्टूड नाउ? क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। whenever the question, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए प्लीज अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली, इसको हम बोलेंगे ग्लोबल मल्टीपल चॉइस। अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कम्स एट द एंड ऑफ द पैसेज, इट मींस
कि आपको देखिए, जैसे कि ज्यादातर ऐसा होता है कि ये पूरा पैराग्राफ क्या कहना चाहता है, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो मुझे आंसर देने का कस करेंगे, इसमें सिर्फ आपने अभी तक जो पढ़ा है उसके बारे में ही है। सो यू टेल मी द आंसर ऑफ 13, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू टाइम फॉर दिस, लेट मी गिव मी द आंसर ऑफ 13th one. Yes, everybody. I want answers from you people. Okay. तो whenever there is a global multiple choice questions, तो आपने क्या करना है, प्लीज प्रीपे अटेंशन हियर। यहाँ पे देखिए, तो हर वक्त आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पूरी चीजों को कवर करता है, जो पूरे पैराग्राफ को कवर करता है। काफी लोग गलत आंसर्स दे रहे हैं, आई कैन सी दैट। ओके, तो एक काम करते हैं, डिस्क्राइब पहला लिखते हैं, प्लीज पे अटेंशन हियर। पहले यहाँ पे अटेंशन देने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ए, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन मेथड्स ऑफ द पिरामिड्स। आपको ये याद रखना है कि व्हेनेवर जो राइटर का एम है, इट शुड कवर मेजॉरिटी ऑफ द एंटायर पैसेज। लेकिन अगर मैं ए की बात करता हूं, उसमें कंस्ट्रक्शन मेथड्स की बात की है, दैट कंस्ट्रक्शन मेथड इज ओनली गिवन इन वन दिस पैराग्राफ। ये मेरा कर्सर जहां पे घूम रहा है उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ, मतलब ये पूरे पैराग्राफ को कवर नहीं करता, दैट मींस ए इज नॉट द आंसर। whenever you got multiple choice questions जिसमें आप पता नहीं कर सकते सही क्या है गलत क्या है, always apply process of elimination। मतलब आप ये करें कि सही नहीं पता चल रहा है तो गलत को निकालते जाइए। so A is not the answer. Let us talk about B. Explain the beliefs of the ancient Egyptians। उनकी beliefs, मान्यता क्या थी, वो उन्होंने फर्स्ट दो पैराग्राफ में दिया है। That means B is also not covering the entire paragraph. C offers an interpretation of Egyptians art and sculpture। आर्ट और स्कल्पचर का जिक्र सिर्फ लास्ट 3-4 पैराग्राफ में किया है, दैट मींस सी इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी द आंसर। लेकिन डी जो है, प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ अर्ली इजिप्शियन सोसाइटी, पहले कैसी हुआ करती उसके बारे में जिक्र है, वो सारी चीजों को कवर करता है। दैट मींस द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी डी, डी फॉर दिल्ली। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस और नो? ये आपके आंसर्स है, दिस आर योर आंसर्स। सो आई वांट यू पीपल टू कॉपी डाउन दिस थिंग्स। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट। आई विल बी गिविंग यू द स्क्रीनशॉट ऑफ द पैराग्राफ आल्सो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yeah, have you taken the screenshot, everybody? Thank you, Satyapal. Yeah, that's true. Whenever a multiple choice question comes, you need to take you can apply the process of elimination. Yeah, answers आपने screenshot ले लिया है सब बच्चों ने? Then I'll be giving you the paragraph का screenshot लेने के लिए मैं आपको help करूंगा। Yes, taken the screenshot? Great. Okay, now you can take the screenshot of this. Yes, take the screenshot of this. Taken the screenshot of this? Okay. मैं ऐसा करूंगा, I'll be giving you this passage tomorrow. I'll be giving you this passage tomorrow. Comfortable everybody? Sure, I'll be giving you the passage so that you can refer it again in case if you want, have got any doubts. Okay, so I have to I'm discontinuing the lecture. I hope you enjoyed the lecture. काफी चीजें मुझे सिखानी है, और many students were telling कि sir for example yeah I wanted to teach you more things, but then time is, many students are telling कि sir हमें जाना है। ये रहे क्वेश्चंस 8 to 12, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल। टेकन? नो इश्यूज, थैंक यू। आई होप यू पीपल एंजॉयड द लेक्चर। यस, ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई विल बी टेकिंग, काफी लोग ऐसा बोल रहे थे या पाई चार्ट वाला, हाँ काफी लोग ऐसा बोल रहे थे कि आई वांट, दे वांट मी टू टेक ग्रामर। मैं टेंसेस काफी टाइम से रह जाता है, टेंसेस मैं 3-4 ले पा रहा हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू टेक द एंटायर टेंसेस। So I'll be taking the tenses next time, so don't worry, you will definitely enjoy tenses. Yeah, clear? Okay, thank you so much students, thank you so much. Good night.